اعظم کے مطابق ملک کی معیشت کمزور نہیں ہے۔ منموہن سنگھ نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ 2004 کے بعد سے معیشت میں کافی حد تک سدھار آیا ہے۔ وزیر اعظم نے مزید کہا کہ پچھلے کچھ سال میں اقتصادی سست روی کے باوجود ملک کی شرح ترقی 7.9% رہی۔ وزیر اعظم نے امید جتائی کہ سال کے اختتام تک ملک کی شرح ترقی 5% ہو جائے گی۔ Our economy has done well over the past decade. In the 9 years since 2004, we averaged a healthy growth rate of 7.9% per annum. There has been no doubt a slowdown in the recent past, and we will probably end this year at the same level as last year with 5% growth. وزیر اعظم منموہن سنگھ نے غیر مقیم ہندوستانیوں کو یقین دلایا کہ حکومت نے ملک کی اقتصادی صورتحال کو مزید بہتر بنانے کے لیے کئی اصلاحی اقدامات کیے ہیں جن کے نتائج اگلے کچھ مہینوں میں سامنے آ جائیں گے۔ I wish to assure you that there is no reason to despair about our present or worry about our future. Indeed, as I have said earlier, we are heading into better times ahead, and I would urge you to remain engaged in the future of this country with confidence and optimism. I am confident you will see the evidence clearly in the next few months. وزیر اعظم کے مطابق یوپی حکومت کے ذریعے ملک کی اقتصادی صورتحال کو بہتر بنانے کا مقصد سیاسی مفاد حاصل کرنا نہیں بلکہ ملک کی معیشت اور سماجی ڈھانچے کو مستحکم بنانا ہے۔ بیورو رپورٹ ETV نیوز۔ عام آدمی پارٹی لیڈر کمار وشواس نے کہا کہ امیٹھی سے انتخابات میں راہل گاندھی کو مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ امیٹھی سے راہل کے مقابلے چناؤ لڑنے کی تیاری کرنے والے کمار وشواس کا کہنا ہے کہ عوام راہل گاندھی کی حقیقت سے آشنا ہو چکے ہیں۔ کیا مشکل ہوگی؟ راہل گاندھی کے لیے مشکل ہے۔ 500 کروڑ روپے ان کی پارٹی خرچ کر رہی ہے ان کی چھوی سدھارنے میں۔ ہم تو 1 روپیہ بھی نہیں خرچ کر رہے، ہمارے پاس ہے ہی نہیں، چونکہ چھوی ہماری خراب نہیں ہے۔ راہل جی کی خراب ہو گئی تو اسے سدھارنے کی کوشش کریں گے۔ تو سب کچھ لٹا کے ہوش میں آئے تو کیا کیا، اب امیٹھی جا کے کیا کریں گے؟ امیٹھی طے کر چکی ہے۔ ابھی تک تو میں نے سنا سیٹ بدل رہے تھے، ابھی سننا ہے کہ 2 جگہ سے لڑیں گے۔ کہیں سے بھی لڑیں، کچھ بھی کریں، سدن میں اس بار وہ پہنچیں گے نہیں، کیونکہ اگر آپ 10 سال میں سوال نہیں پوچھتے ہیں، آپ کی نیونتم حاضری رہتی ہے، دیش لٹتا رہتا ہے، دیش اسپین میں ہوتا ہے، آپ اسپین میں ہوتے ہیں، تو امیٹھی والے بھی آپ کو وہیں بھیجنے والے ہیں۔ اور اب بات جسٹس گانگولی کے لا انٹیلیجنس ہراسانی معاملے کا سامنا کر رہے سپریم کورٹ کے سابق جج AK گانگولی کا کہنا ہے کہ ان کے ساتھ مرکزی اور ریاستی حکومت دونوں نے ہی غلط سلوک کیا ہے۔ گانگولی نے الزام عائد کیا کہ مغربی بنگال حکومت نے ان کے خلاف سازش کی ہے۔ گانگولی مختلف سطح پر دباؤ کے بعد مغربی بنگال انسانی حقوق کمیشن کے چیئرمین کے عہدے سے مستعفی ہوئے ہیں۔ It was very difficult for my family members, especially my wife, daughter, daughter-in-law, and other members of the family to take it anymore. The kind of campaign which was going on against me. It was a totally one-sided effort by both the state government and central government to seek my ouster. تو یہاں پر رکیں گے ایک اور چھوٹے سے بریک کے لیے۔ اگر سیمنٹ جنگ رودھک نہ ہو تو جان لیوا ہو سکتا ہے۔ شری الٹرا ریڈ آکسائڈ، بھارت کا ایک ماتر جنگ رودھک سیمنٹ۔ نلگنڈا ضلع کے ایک ہاسٹل میں طالبات کی عصمت ریزی کے واقعے کو چند روز ہی گزرے ہیں کہ نظام آباد ضلع میں ہی اسی قسم کا ایک اور افسوسناک واقعہ منظر عام پر آیا ہے۔ ضلع کے ایک گرلز ہاسٹل کی ایک طالبہ ماں بن گئی ہے۔ اس واقعے کے بعد لوگوں میں ہاسٹلوں میں طالبات کے مستقبل اور تحفظ کو لے کر تشویش پائی جا رہی ہے۔ دیہی اور قبائلی علاقوں سے تعلق رکھنے والی لڑکیوں کو تعلیم سے جوڑنے کے لیے حکومت کی جانب سے گرلز ہاسٹل قائم کیے جاتے ہیں، لیکن بعض انسانیت سوز واقعات کے سامنے آنے کے بعد ہاسٹلوں کے تئیں حکام کی لاپرواہی کا پردہ فاش ہو رہا ہے۔
निजामाबाद जिला के पटलम मंडल हेडक्वार्टर में वाक़ कस्तूरबा रेसिडेंशियल स्कूल में 10वीं जमात की तालिबा ने स्कूल के टॉयलेट में एक बच्चे को जन्म दिया। हैरत की बात यह है कि तालिबा को 7 माह का हमल होने के बावजूद हॉस्टल के टीचर और वार्डन बेखबर रहे। मंगल की रात तालिबा ने जच्चगी के बाद बच्चे को खिड़की से बाहर फेंक दिया। लड़की ने यह सब काम निहायत खामोशी से अंजाम दिया। सुबह होने पर खिड़की के बाहर नौमौलूद बच्चे के पाए जाने के बाद हकीकत सामने आई। मकामी लोगों ने बच्चे को अस्पताल में भर्ती करा दिया, लेकिन डॉक्टरों ने नौमौलूद को मुर्दा करार दिया। సార్ ఎవరికి అమ్మాయి 20 డేస్ బ్యాక్ వచ్చింది సార్. 20 డేస్ బ్యాక్ వచ్చింది. అందరికి మామూలుగా అమ్మాయిలాగానే బిహేవ్ చేసింది సార్. మామూలు పిల్లల్లాగానే బిహేవ్ చేసింది తను. ఎవరికి డౌట్ వచ్చేటట్టు కూడా బిహేవ్ చేయలేదు. ఈవెన్ నైట్ గానీ ఎవరు అడిగినా గానీ మెన్సెన్స్ వచ్చినాయని కూడా, అంటే ఇంటి దగ్గర వచ్చినాయని కూడా చెప్పింది సార్. అయితే ఆ అమ్మాయి ఇర్రెగ్యులర్, మామూలుగా ఏదో ఓసారి 10th క్లాస్ కాబట్టి లేట్ ఉంటావు అమ్మ, మరి పరీక్ష పాస్ కావాలి కదా, నువ్వు ఇట్లా పోతే ఆబ్సెంట్ ఉంటే మంచిది కాదు అంటే వాళ్ళ నాన్నకు ఫోన్ చేశాను. ఆమె కాదు, వాళ్ళ నాన్నకు ఫోన్ చేసి మీ అమ్మాయిని తీసుకుపోయి ఇన్ని రోజులు పుండు నేను తీసుకుపోయి ఇంతవరకు పంపలేదు అని నేనున్నప్పుడు చెప్తే, అయితే ఆమె ఏం చేసిందంటే, నాన్న ఏం చేసిందంటే పంపుతా సార్ ఫుడ్ తక్కువ కాలేదు అని అన్నారు. అంతలోకి నేను లేదమ్మా పరీక్షలప్పుడు ఖచ్చితంగా రావాలి, ఏదైనా మందులు పెట్టుకుని వచ్చేసి జైలు కండి అని చెప్పిన తర్వాత ఆమె వచ్చేసింది. వచ్చిన తర్వాత ఇక నాకు ఆర్డర్ వచ్చి వెళ్ళిపోయినా ఇక నేను లేని ఇక్కడ జరిగింది. ఆమె మొన్ననే వచ్చింది. ఆమె కూడా पुलिस ने निर्भया कानून के तहत एक केस दर्ज कर लिया है और इस वाकये के लिए जिम्मेदार लड़की के बहनोई के भाई को गिरफ्तार कर लिया गया है। लोग सरकारी और समाजी हॉस्टलों में तालिबात के तहफ्फुज को यकीनी बनाने के लिए खुसूसी इकदामात की मांग कर रहे हैं। ईटीवी न्यूज निजामाबाद। मरकजी वजारत सेहत ने कैंसर के मरीजों के लिए 2 कैंसर सेंटर के क़याम का फैसला किया है। एक कैंसर सेंटर स्किम श्रीनगर और दूसरा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल जम्मू में खोला जाएगा। रियासत में एडिशनल कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम के तहत ये दोनों सेंटर कायम किए जाएंगे। जम्मू कश्मीर के हालिया दौरे के दौरान मरकजी वजीर सेहत गुलाम नबी आजाद ने 2 कैंसर सेंटर के क़याम का ऐलान किया। एक सेंटर श्रीनगर में जबकि दूसरा जम्मू में खोला जाएगा। गुलाम नबी आजाद के इस ऐलान के बाद रियासती हुकूमत ने इस प्रोजेक्ट की तकमील के लिए तेजी से कार्रवाई शुरू कर दी है। तिब्बी उमूर के वजीर ताज मोहिद्दीन ने आजाद की हिदायत के मुताबिक जम्मू में कैंसर सेंटर के क़याम के लिए जगह और दीगर चीजों का जायजा लिया। कैंसर 2 नए हमारी मिनिस्ट्री से इंस्टीट्यूट रीजनल इंस्टीट्यूट मंजूर हुए। एक जम्मू मेडिकल कॉलेज में लगेगा और उसी बिल्डिंग में जो नई बिल्डिंग है उस बिल्डिंग में लगेगा, और एक श्रीनगर में शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट में लगेगा। और इसमें तमाम वो बिल्डिंग ज्यादा नहीं बनेगी, सबसे ज्यादा जो 80% जो पैसा है वो इक्विपमेंट पे लगेगा, जैसे लीनियर एक्सलेटर है या बाकी चीजें, वो तमाम इक्विपमेंट लगेगा जो दिल्ली के किसी कैंसर इंस्टीट्यूट या है, मुंबई टोटा में जो कैंसर इंस्टीट्यूट में है, वो तमाम इक्विपमेंट यहाँ लगेगा ताकि लोगों को दिल्ली या चंडीगढ़। कैंसर सेंटर के क़याम के ऐलान से रियासत के लोगों में खुशी की लहर है, क्योंकि अब उन्हें कैंसर के इलाज के लिए बैरून रियासत का रुख नहीं करना पड़ेगा। वहीं डॉक्टर भी इसे एक खुश आइंद कदम मानते हैं। अभी रिसेंटली बहुत अच्छी न्यूज़ है जम्मू के लोगों के लिए और हम लोगों के लिए भी एज एक्सपर्ट्स कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमें, हेल्थ मिनिस्ट्री ने हमें 45 करोड़ रुपीस ग्रांट किए हैं फॉर अपग्रेडेशन ऑफ ओनली कैंसर सेंटर, जिसको अब टर्शरी कैंसर सेंटर का नाम दिया गया है। पहले रीजनल कैंसर सेंटर बोलते थे, अब इसको टर्शरी केयर सेंटर बोलते हैं, टर्शरी कैंसर सेंटर। तो अगर ऐसा एक सुपर स्पेशलाइज्ड कैंसर हॉस्पिटल खुल जाता है तो ये बहुत अच्छी बात है, और इससे कम से कम जो गरीब लोग हैं जो इस बीमारी के शिकार हैं उनको काफी हद तक जो है रिलीफ मिल जाएगा। वाज़ेह है कि हालिया बरसों में जम्मू कश्मीर में कैंसर के मरीजों की तादाद में खासा इजाफा हुआ है, जिसे देखते हुए ये दोनों कैंसर सेंटर मरकजी वजारत सेहत की जानिब से आवाम के लिए किसी गिरा कद्र तोहफे से कम नहीं है। ईटीवी न्यूज जम्मू। 2 तालिबी मरीज की जानिब से दहली अदालत में शख्सी हाजिरी से मुस्तस्ना करार देने की दरख्वास्त करते हुए दाखिल करदा अर्जी की एनआईए ने मुखालफत की है। दहली अदालत में एनआईए की नुमाइंदगी करने वाले एडिशनल सॉलिसिटर जनरल सिद्धार्थ लोथरा ने कहा कि मुकदमे की चार्जशीट दाखिल न करने का बहाना बनाकर अदालत में शख्सी हाजिरी से इस्तिस्ना देने की अर्जी दाखिल करना नामुनासिब है। वाज़ेह कि 15 फरवरी 2012 को 2 तालिबी मरीज के हाथों हिंदुस्तानी माहीगिरों की हलाकत का वाकया पेश आया था, जिसके बाद 19 फरवरी 2012 को उनकी गिरफ्तारी अमल में आई थी।
पाकिस्तान में हिंदुस्तानी शहरी सरबजीत सिंह के कत्ल का मुकदमा शुरू हो गया है। लाहौर की एक सख्त सिक्योरिटी वाले जेल में मुबैना कातिलों के खिलाफ मुकदमे की पहली सुनवाई हुई। गुज़िश्ता साल अप्रैल में कोट लखपत जेल में 2 सजायाफ्ता कैदियों ने 49 साल सरबजीत पर जानलेवा हमला किया था। सरबजीत शदीद तौर पर जख्मी हो गए थे। बाद में 2 मई को सरबजीत का इंतकाल हो गया था। सरबजीत पर हमला करने वालों ने कत्ल की जांच कर रहे हुकाम के सामने मुबैना तौर पर कहा था कि क्योंकि सरबजीत ने मुबैना तौर पर लाहौर में बम हमले किए हैं, इसीलिए उन्होंने सरबजीत पर हमला किया। जज ने अगली सुनवाई 16 जनवरी तक के लिए मुलतवी कर दी है। साबिक पाकिस्तानी सदर आसिफ अली जरदारी कल अदालत में पेश हो सकते हैं। उनके खिलाफ करप्शन के 5 मुकदमा चल रहे हैं। 17 साल पहले आसिफ अली जरदारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए थे। इस्लामाबाद में एहतसाब के अदालत में पेश होने के लिए आसिफ अली जरदारी ने उन्हें मौजूद सिक्योरिटी देने की दरख्वास्त की है। इस सिलसिले में जरदारी के वकील और पाकिस्तान के साबिक वजीर कानून फारूक एच नायक ने वजारत दाखिला के सेक्रेटरी शाहिद खान और इस्लामाबाद के इंस्पेक्टर जनरल सिकंदर हयात को खत लिखा है। शाम ने कीमियाई हथियारों के मटेरियल्स को मुल्क से बाहर करने का अमल शुरू कर दिया है। ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिटेशन ऑफ केमिकल वेपन्स ने मंगल के रोज कहा कि कीमियाई मटेरियल्स को लताकिया बंदरगाह को ट्रांसपोर्ट कर दिया गया है और वो इंटरनेशनल वाटर्स की जानिब रवा दवा है। वज़ीर के शाम जून तक अपने कीमियाई हथियारों को तल्फ करने पर राजी हो गया। इस सिलसिले में शाम और रूस के दरमियान मुजवजा मुआहदा हुआ है, जिस पर अमरीका ने रजामंदी जाहिर की है। तो खबर दिन भर में आज बस इतना ही। आदाब। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। औरंगाबाद में वाक़े दरगाह हजरत निजामुद्दीन कलीमी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की क्या है तारीखी अहमियत? देखिए प्रोग्राम बारगाहे अकीदत में बुध की रात 8:30 बजे और जुमा दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं ईटीवी का खास प्रोग्राम बारगाहे अक़ीदत। नाज़रीन, आज फिर एक खास एपिसोड को लेकर हम आपके बीच हाजिर हुए हैं। आज ईटीवी की टीम रियासत महाराष्ट्र के तारीखी शहर औरंगाबाद में मौजूद है। नाज़रीन, जिस आस्थाने की आज आप ज़ियारत करेंगे, आस्थाना चिश्तिया सिलसिले के अहम बुजुर्ग हज़रत सैयद ख्वाजा शाह निज़ामुद्दीन औलिया कलीमी चिश्ती औरंगाबादी रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना है। क्या आपकी तालीमात? आइए डालते हैं एक नज़र।
سرزمین ہند کا شمار دنیا کے ان ممالک میں کیا جاتا ہے جہاں صوفیہ کی تعلیمات نے اسلام کی تعلیمات کو عام کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ اس ملک کا کوئی خطہ ایسا نہیں ہے جسے صوفیہ نے اپنی تعلیمات سے منور نہ کیا ہو۔ آج جس آستانے کی زیارت ETV اردو کے ناظرین کر رہے ہیں اس کا تعلق سرزمین دکن کے تاریخی شہر اورنگ آباد سے ہے۔ دکن کو صوفیہ کی سرزمین کہا جاتا ہے۔ اس سرزمین کو یہ اعزاز حاصل ہے جس کا رشتہ اولیاء اللہ اور بزرگان دین سے اس وقت استوار ہو گیا تھا جب نور منور کی کرنیں سرزمین عرب سے دنیا کے مختلف ممالک کو روشن کر رہی تھی۔ یوں تو سرزمین دکن میں اہل سلاسل کے تمام سلسلے موجود ہیں اور تمام ہی سلسلوں نے اپنی مقدور بھر سرزمین دکن کو اسلامی تعلیمات سے منور کیا ہے، لیکن اس میں چشتیہ سلسلے کے بزرگوں کی تعلیمات اور خدمات سب پر نمایاں ہیں۔ صوفیہ کی تعلیمات کے حوالے سے سرزمین دکن میں ضلع اورنگ آباد کو ایک خاص مقام حاصل ہے۔ اس ضلع میں صوفیہ کے مراکز میں دولت آباد، خلد آباد اور خود ضلع اورنگ آباد کے صدر مقام اورنگ آباد کو اہم مقام حاصل ہے۔ مغل شہنشاہ اورنگزیب کے عہد میں سرزمین اورنگ آباد کو جن بزرگوں نے اپنے ریاست کا مرکز بنایا اور اسلام کی حقیقی تعلیمات کی روشنی میں انسانیت کی خدمت کا عظیم کارنامہ انجام دیا، ان میں حضرت شاہ نظام الدین اولیاء اورنگ آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سر فہرست ہے۔ ETV اردو کے ناظرین آج جس بزرگ کے آستانے کی زیارت کر رہے ہیں وہ حضرت شاہ نظام الدین اولیاء اورنگ آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات اقدس ہے۔ دیکھیے، آج ہم جس آستانے پہ موجود ہیں یہ حضرت خواجہ سید شاہ نظام الدین اولیاء اورنگ آبادی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور اورنگ آباد ان کو خطب دکن بھی کہا جاتا ہے، نظام الدین ثانی بھی کہا جاتا ہے، اور یہ شیخ کلیم اللہ شاہ جہان آبادی رحمۃ اللہ علیہ دہلوی کے خلیفہ ہیں، مرید ہیں، اور آپ چشتیہ، قادریہ، نقشبندیہ سلسلہ، تمام سلسلے کے جمع سلاسل کے آپ کو خلافت حاصل ہے۔ قطب الاقطاب قطب دکن حضرت شاہ نظام الدین اولیاء اورنگ آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب حضرت شیخ شہاب الدین رحمۃ اللہ علیہ کے تبسط سے خلیفہ اول حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ختم ہوتا ہے۔ تاریخ اور مختلف تذکروں سے جہاں تک معلومات حاصل ہوئی ہیں اس لحاظ سے قطب دکن حضرت شاہ نظام الدین اولیاء اورنگ آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت کا سال 1060 ہجری قرار پاتا ہے۔ حضرت شاہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت باسعادت اتر پردیش کے دارالحکومت لکھنؤ سے متصل تاریخی قصبہ کاکوری میں ہوئی، اور بحکم من سعادہ سعادہ فی بطن امہ رحم مادر صحیح سعادت ازلی اور ولایت لم یزلی ہمراہ لائے۔ ماں کی گود سے نکل کر آغوش قدر میں آپ نے تعلیم و تربیت پائی، اور جب کاکوری کی درسگاہ میں آپ علم حاصل کر رہے تھے ٹھیک انہی ایام میں مدینہ منورہ کی خانقاہ عالم میں آپ کی تربیت باطنی کے لیے انتظامات عمل میں آ رہے تھے، یعنی سرور کائنات رسول مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر شیخ الشیوخ قطب المدینہ حضرت شیخ یحییٰ مدنی رحمۃ اللہ علیہ اپنے خلیفہ اعظم شیخ کلیم اللہ شاہ جہاں آبادی رحمۃ اللہ علیہ کو آپ کی تربیت باطنی کے لیے ہدایت و تاکید فرما رہے تھے۔ اس اجمال کی تفسیر یہ ہے کہ جس وقت حضرت شیخ شیوخ العالم نے حضرت شیخ کلیم اللہ شاہ جہاں آبادی کو مدینہ میں نعمت خلافت عطا فرمائی اور رخصت کا وقت آیا تو فرمایا کہ ہمارے سلسلے کے وارث سے نعمت کا نام نظام الدین ہے جو تمہارے پاس تحصیل علم کے لیے آئے گا۔ جب حضرت شیخ کلیم اللہ شاہ جہاں آبادی اپنے پیر و مرشد حضرت یحییٰ مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے رخصت لے کر مدینہ منورہ سے دہلی آئے تو فرمان شیخ کی تعمیل کے لیے فیض باطن کے ساتھ ساتھ علوم ظاہری کی تعلیم کو اپنی خانقاہ میں جاری رکھا، اور ادھر حضرت شاہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اپنی تعلیم اپنے وطن کے جید علماء سے حاصل کرنے کے بعد والدین سے اجازت لے کر مزید تعلیم کے لیے لکھنؤ ہوتے ہوئے دہلی کا سفر کیا۔ دہلی میں حضرت شیخ کلیم اللہ شاہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں شبانہ روز حال کے جلسے ہوتے تھے۔ علم ظاہر کا خزانہ ہر طالب علم کے لیے کشادہ تھا، مگر اسرار باطن کی مجلس میں اس کو جگہ ملتی تھی جو ارادت و محبت کا شیدائی تھا۔ گویا خانقاہ میں علم و فضل کے تازہ بتازہ شاداب پھولوں کا ایسا دلکش چمن آراستہ تھا کہ تشنگان علم مشرق و مغرب سے دوڑ دوڑ کر آتے تھے۔ انہی دنوں میں اس بہار بے خزاں کی دلچسپیوں کا آوازہ سن کر شوق میں پورب کے افق سے وہ آفتاب برآمد ہوا جس کی جلوہ فرمائی کے انتظار میں یہ سب روش بندیاں ہو رہی تھی۔ جب وہ آفتاب در خانقاہ پر آیا تو ایک نئی روشنی ظاہر ہوئی۔ پیر مرشد نے آپ کو دیکھتے ہی پہچان لیا اور اپنے برابر میں بٹھا لیا۔ اس طرح سے علوم باطنی کے لیے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو جس مرشد کی ضرورت تھی وہ پوری ہوئی، اور آپ نے مرشد کی خدمت میں رہ کر تمام علوم حاصل کیے، اور جب علوم ظاہری و باطنی پر آپ درجہ کمال پر پہنچے تو مرشد نے آپ کو خلافت سے سرفراز کر کے دکن کے لیے روانہ کیا۔
पुर मुर्शिद के हुक्म पर दक्कन रवानगी से कब्ल हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने दिल्ली में हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, महबूब इलाही हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने की जियारत की और पीर दस्तगीर के हुजूर में खाकपोश होकर दक्कन के लिए रवाना हुए। दिल्ली से निकलने के बाद वस्त्र हिंद के तारीखी मकामात बुरहानपुर, शोलापुर, बीजापुर में वहाँ के बुजुर्गान दीन के साथ मुख्तसर वक्त क़याम किया और फिर दक्कन तारीखी शहर औरंगाबाद में जलवा अफरोज हुए और दक्कन के शहर औरंगाबाद को अपनी रियासत का मरकज बनाया। आप की पैदाइश यूपी के एक शहर काकोर में हुई है जो लखनऊ के पास है। आपने इब्तिदाई तालीम अपने वालिदैन के पास अपने शहर काकोर में हासिल की और आगे की तालीम लेने के लिए अपने वालिदैन की इजाज़त से दिल्ली तशरीफ़ लाए। दिल्ली में उस वक़्त बड़े बड़े उलमा इकराम और बुजुर्गान दीन की खानखाएँ थीं जहाँ पर दीनी, दुनियावी, बातिनी तालीमें दी जाती थीं। आप शेख कलीमुल्लाह शाह जहानाबादी रहमतुल्लाह अलैह की खानखा पे दस्तक दी और वहाँ उनके तालिब बने और वहाँ पर इल्म हासिल करने लगे। यहाँ पर एक चीज़ वाज़े करना और बताना बहुत ज़रूरी है अल्हम्दुलिल्लाह के शेख कलीमुल्लाह शाह जहानाबादी रहमतुल्लाह अलैह खुद निजामुद्दीन का इंतज़ार कर रहे थे। नादिन, आप देख रहे हैं ईटीवी का खास प्रोग्राम बारगाह अक़ीदत और आज हम मौजूद हैं आपके तारीखी शहर औरंगाबाद में। नादिन, जिस आस्थाने की आप ज़ियारत कर रहे हैं यह आस्थाना हज़रत ख्वाजा सैयद शाह निज़ामुद्दीन औलिया कलीमी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना है। इस आस्थाने का फ़न तामीर क्या है तो हम आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले से छोटा सा ब्रेक जाएगी। देखते रहिए हमारा खास प्रोग्राम बारगाह अक़ीदत। जनवरी से हर शनिवार और रविवार रात 9 बजे सिर्फ कलर्स पर। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कन नामा, रोजाना शाम 6:30 बजे। भागती दौड़ती जिंदगी में खबरों की कोई कमी नहीं, लेकिन हम आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबरें जिसमें ना है कोई जानिबदारी ना ही सनसनी। खबर जो हर दम आपको रखे बाखबर। देखिए दिन भर की खबरों का आईना 9 PM खबरनामा। दुनिया अपडेट खबरों का नया और अनूठा शो, जिसमें हम आपको दिखाएंगे दुनिया की अहम खबरें और करेंगे उनका तज्जिया। जानेंगे दुनिया की अहम घटनाओं का भारत पर क्या होगा असर। दिखाएंगे ग्लैमर जगत का हाल और तेज खबरों में देखेंगे क्या कुछ हुआ पूरी दुनिया में बीते हफ्ते के दौरान। तो देखना न भूले दुनिया अपडेट हर रविवार शाम 6 बजे ETV उर्दू पर।
नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका खैर मकदम और आप देख रहे हैं ईटीवी का खास प्रोग्राम बारगाह अक़ीदत। नाज़रीन, जिस आस्थाने की आप ज़ियारत कर रहे हैं, ये आस्थाना हज़रत सैयद ख्वाजा शाह निज़ामुद्दीन औलिया कलीमी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना है। इस आस्थाने का फन तामीर क्या है, आइए डालते हैं एक नज़र। हज़रत शाह निज़ामुद्दीन औलिया औरंगाबादी रहमतुल्लाह अलैह को तारीख के औराक में कुतुबुल अक़ताब कुतुब दक्कन के नाम से भी याद किया गया है। कुतुब दक्कन हज़रत शाह निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह अहद आलमगीरी में औरंगाबाद तशरीफ लाए थे। ये वो वक्त था जब दक्कन का तारीखी शहर औरंगाबाद अपनी तमाम तरानाइयों के साथ जगमगा रहा था। महाराष्ट्र में औरंगाबाद एक तारीखी शहर है। इस शहर की अजमत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि शहर के बुजुर्गान दीन की खिदमत के सबब इसे तारीख के औराक मदीनतुल औलिया के नाम से भी याद किया गया है। इस शहर में जब कोई अक़ीदतमंद बुजुर्गान दीन के आस्थाने की ज़ियारत के लिए आता है तो उसकी जुबान पर ये लफ्ज़ भी होते हैं, जा बजा बिखरे ये बुजुर्गों के कदमों के निशान, बेअदब हों न कहीं चलते हुए डर लगता है। कुतुबुल अक़ताब कुतुब दक्कन हज़रत शाह निज़ामुद्दीन औलिया औरंगाबादी रहमतुल्लाह अलैह के इरादतमंदों में शहान वक्त भी शामिल थे, लेकिन आप न किसी से मरऊब हुए और न आपने किसी शाह को अपनी खानगाह में तामीर की इजाज़त दी। हालांकि आप औरंगजेब आलमगीर के अहद में दक्कन में तशरीफ ला चुके थे। आपके इरादतमंदों में शहान वक्त के साथ आम लोग भी शामिल थे। हज़रत शाह निज़ामुद्दीन औलिया औरंगाबादी रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना औरंगाबाद में एक वसी कैंपस में मौजूद है। कैंपस के सद दरवाजे से दाखिल होने के बाद ज़ायरीन को गुंबद मुबारक के दीदार होते हैं और जब ज़ायरीन अपने अक़ीदत के साथ आस्थाने आलिया पर जाकर हाजिरी देते हैं तो न सिर्फ उनकी रूह की बेचैनियाँ काफूर हो जाती हैं बल्कि उनकी दिली मुरादें भी बर आती हैं। कुतुब दक्कन हज़रत शाह निज़ामुद्दीन औलिया औरंगाबादी रहमतुल्लाह अलैह जिस वक्त औरंगाबाद में तशरीफ लाए थे उस वक्त आपकी शादी नहीं हुई थी। यहाँ आने के बाद भी आप कुछ अरसा मुजर्रद रहे। कुछ अरसा बाद आपकी शादी हुई और 3 साहबजादे तवल्लुद हुए, जिनमें गुलाम मोइनुद्दीन, गुलाम बहाउद्दीन और गुलाम इमादुद्दीन के नाम काबिल जिक्र हैं। आपकी दूसरी ज़ौजा सैयदा बेगम जो हजरत सैयद मोहम्मद यसुदराज बंदा नवाज रहमतुल्लाह अलैह की परपोती थी, उनके वतन से एक साहबजादी और 2 साहबजादे मोहम्मद इस्माइल और मोहम्मद फखरुद्दीन उर्फ मौलाना फख्र मुहिब्बुन नबी पैदा हुए। आपने जो तालीमी सिलसिला शुरू किया था आपके खानदान में वो आज भी जारी है। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया औरंगाबादी रहमतुल्लाह अलैह के अहद में इस मकाम पर जहां आपका आस्थाना आलिया है, एक बड़ी खानकाह तामीर होने के साथ मस्जिद भी तामीर हो चुकी थी। मस्जिद की तामीर आपने अपने हाथों से खुद की थी। दरगाह कैंपस में मस्जिद आस्थाना आलिया के अलावा खानकाह महफिल सिमा मौजूद है। इनमें वक्त और खानकाह की जरूरत के लिहाज से वक्त के साथ तरमीम की गई है। दरगाह कैंपस में जो इमारतें हैं उनको देखने के बाद इसमें मुगल फन तामीर के साथ हमें दक्कनी तामीरात के नमूने भी वाज़ेह तौर पर देखने को मिलते हैं। उस वक्त दक्कन में मुगल हुकूमत थी, औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की हुकूमत थी। आपके यहाँ पर औरंगाबाद में तशरीफ लाने के कुछ साल बाद आपके इंतकाल हो गया। ज्यादा करके जो तामीरात हुई हैं वो निज़ाम हुकूमत के अंदर हुई हैं, और ये जो तामीर आप देख रहे हैं ये यहाँ की मुकामी दक्कनी तामीरात उस जमाने की हुई हुई हैं। जैसे कि आप मस्जिद आपने देखी है, ये आपने अपनी हयाती में तैयार की है। आपका गुम्बद शरीफ आपके पर्दा फरमाने के बाद में तैयार हुआ है, और ये जो बाद में एक्सटेंशंस हैं ये मौजूदा सज्जादा नशीन सैयद मोइनुद्दीन साहब ने जरूरत के हिसाब से जो है तो वो एक्सटेंशंस किए हैं। दक्कन में हैदराबाद की आसफिया हुकूमत को तो हर कोई जानता है, लेकिन ये बात बहुत कम लोगों के इल्म में होगी कि आसिफ जाही हुकूमत आप ही की बख्शिश थी। तारीख के औराक में लिखा है कि मुगल शहंशाह औरंगजेब आलमगीर के इंतकाल के बाद जब हुकूमत को लेकर आपसी रेशोदवानियां शुरू हो गईं और औरंगजेब आलमगीर के बहुत से सरदारों ने अपने अपने इलाके में अपनी खुद मुख्तारी का ऐलान कर दिया, तो इस पर जब दिल्ली से अमीर कमरुद्दीन अली खान को दक्कन की तस्खीर के लिए रवाना किया गया, तो दक्कन में आसिफ जाही हुकूमत के बानी अमीर कमरुद्दीन अपनी फौज के साथ कुतुब दक्कन हजरत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के पीर मुर्शिद हजरत शेख कलीमुल्लाह शाहजहांबादी की खिदमत में हाजिर हुए और अपना मुद्दा बयान करते हुए कहा कि हजरत मुल्क में इस इंतशार और बदमनी के दौर में मुगलिया सल्तनत की पोसीदा दीवारों को सहारे की जरूरत है। इस वाक़े की तफसील बता रहे हैं दरगाह के नाइब सज्जादा नशीन एडवोकेट सैयद महबूब